Good afternoon, students. I'm very happy to know that today there was a biology class 12th exam, board exam, and I'm going to review the paper for you all. And I have got the set 2 of the paper, and let us review that how was the paper of the CBSE board this time. And as my friends are saying that paper is little tricky, so let us see about it. That this is a section 1. Interferons are the proteins in the humans. They are secreted by thymus gland. And what is the correct option? Thymus gland, B lymphocytes, viral infected cells, or tonsils. So it is C, tonsils. Sorry, C, viral infected cells. आपको पता ही है viral infected cells interferons बनाते हैं. And select the pathogen mismatched. Which pathogen is mismatched? Is the Haemophilus influenzae, blockage of intestinal passage is mismatched because आप में पता है Haemophilus influenza का बुक में आपको NCERT उसमें निमोनिया के लिए दिया हुआ है. And what is the primary productivity? This kind of question we have done in our pre-board exam as well. तो इसका क्या यूनिट है, किसमें एक्सप्रेस्ड होती है ये, तो इसकी यूनिट बतानी थी. So kilocalorie per meter square per year is the correct answer. Select the option that you correctly matched with U, X, Y, and Z. So what is X portion? What is Z portion? What is Y portion? So you know the Y is cotyledons 2N and Z is the radical part, and then U is the X is the suspensor. So U is the plumule part. So this is the portion, and you can see the question. Next, which are the given below the 4 aspects of reproductive health? MTP, it was initiated, it is legalized in 1971. Amniocentesis, it is analysis of the fetal. So B is matching with 1. So B is matching with 1 is only in the first and the D option. B and the D option it is given, but you will be going with others also. Saheli is the non-steroidal, so C is matching with 4th. So the answer option which is correctly matching is C is matching with 4th, A is matching with 2. So D will be the option. D will be the correct option for you. And now next is at which stage during the evolution did human use hides to, means which humans were using the hides to protect their body. So the Homo habilis was using this hides to protect their body. Given below the sequence of the bases of the mRNA of a bacterial cell, identify the amino acid that would be incorporated the codon position 3 and codon position 5 during the process of translation. So what is the amino acid which is responsible for the codon position 3rd and the 5th? So 1 and this is 2, then this is 3, then 4th and 5th. So AUG is for methionine. So codon position 5th is methionine, and the codon position 3rd is UUU is phenylalanine. So A is the answer option, which will be correct for you. Now next is interaction between the clownfish and the among the stinging tentacles of the sea anemone is clownfish and sea anemone का कमेंसलिज्म है. तो क्लाउनफिश को क्लाउनफिश को फायदा होता है, बट सी एनेमोनी को ना ही कोई फायदा होता है ना ही नुकसान होता है. तो डी ऑप्शन के साथ आप जाएंगे. नेक्स्ट इज the 9th question. The important attributes of belonging to a population but not to an individual are the population birth rate and death rate are the attributes which are even 1 is there, and the sex ratio is also which belong to the population. So 1 and 4th will be the answer. So D option will be correct in this. D option will be correct in this. Now coming to the next option. Which of the following group faces maximum threat to extinction? किनको सबसे ज्यादा extinction का threat हो रहा है? तो आजकल आप देखेंगे कि एम्फीबियंस की स्पीशीज, फ्रॉग्स सबसे ज्यादा थ्रेट में है एक्सटिंक्शन के. तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट एम्फीबियन हो गया. एंड देन गिवन बिलो द रिस्ट्रिक्शन साइट ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियर PST1 एंड द क्लीवेज साइट ऑफ द DNA molecule.
तो ये रेस्ट्रिक्शन साइट दी हुई है, चूज द ऑप्शन दैट गिव द करेक्ट रिजल्ट। अब यहाँ कट प्रोड्यूस होगा और यहाँ कट प्रोड्यूस होगा तो किस तरह का सीक्वेंस आपको मिलेगा। तो यहाँ कट प्रोड्यूस होने से यहाँ पर ये ओवरहैंगिंग सीक्वेंस बनेगा, जी के बाद पूरा आपको ACGT इस तरह से मिलेगा, एंड this will be separated, and here this will be separated, CTGCA, this will be separated. So such kind of sequence you will be getting. So let us see किस ऑप्शन में सही दिया हुआ है, and so last option I think the D option is correct, because उसमें इस तरह से कट प्रोड्यूस करके दिखा रखा है, zigzag कट प्रोड्यूस होगा तो यहाँ से इस तरह का होगा, नीचे वाले में वो उधर की तरफ जाएगा, तो D option will be correct. Next, we will be moving to the next topic, that is next question. Given below the list of the commercially important products and their source organism, select option that give the correct matches. Cyclosporin A. Cyclosporin A किस तरह का कौन बनाता है, तो आपको पता है ट्राइकोडर्मा, तो सेकंड से मैच होगा। स्टैटिन्स कौन बनाते हैं, so you know that Monosaccharus purpurus is making the statin. Streptokinase is made by Streptococcus and Penicillium is made by Penicillium notatum. So this is the very easy one. आराम से आपने मैच कर लिया होगा। तो A is matching with second, B is matching with fourth, A second, B fourth, C 1. So A second, B fourth, C 1. The D option is correct. So D option, you will go with D option. Now let us see 13 to 16 questions, which are assertion reason based question. Both you have to see. Decomposition process slower है अगर detritus rich है, lignin में, cutin में decomposition largely oxygen requiring process है. So A is correct, and B is also correct, but B is not a correct explanation, because इसमें अगर शुगर मोनोसैकेराइड्स में रिच होता है, डिकम्पोजिशन डिट्राइटस तो जल्दी डिकम्पोज होता है, वो उसका करेक्ट रीजन होता है। और लिग्निन इज कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड, इसलिए उसमें ज्यादा टाइम लगता है, तो इसका बी होना चाहिए ऑप्शन। Now assertion determining the sex of an unborn child followed by NTP is illegal practice. Amniocentesis practice to test the presence of genetic disorders. So both are correct, and पर same way the R is not a correct explanation for the A, क्योंकि अगर यहाँ पर बोला जाता कि MTP इलीगल क्यों है, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी वो होता है, और एमनियोसेंटेंसेस भी है, बट अनरिलेटेड स्टेटमेंट्स है। The thalassemia, 15th क्वेश्चन पे देखें, थैलासीमिया अब नॉर्मल मायोग्लोबिन चेन सिंथेसाइज होती हैं ड्यू टू जीन डिफेक्ट। अल्फा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय द जीन HbA1, HbA2 on chromosome 16. So both A and B are correct, and the correct explanation A क्वेश्चन ऑप्शन के साथ जाओ गया। Synthetic oligonucleotide polymers are used during the annealing of the PCR. The primer will bind to the double-stranded DNA at their complementary regions. So ये भी, इसमें भी आप A ऑप्शन के साथ जाएगा, करेक्ट है, एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। स्टेट द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन सेपरेशन ऑफ DNA फ्रैगमेंट ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर और अपने इलेक्ट्रिक चार्जेस के बेसिस पे एनोड की तरफ मूव करते हैं, तो ये प्रिंसिपल है आपका। साइज के बेसिस पे जो ज्यादा स्मॉल फ्रैगमेंट्स होती हैं ज्यादा दूर जाती हैं, लार्ज फ्रैगमेंट्स कम दूर जाती हैं। हाउ द DNA फ्रैगमेंट विजुअलाइज बाय, बिकॉज हमने इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन भी कर रखा है, तो और यूवी में आप एक्सपोज करते हैं, ऑरेंज बैंड दिखता है। गिवन एग्जांपल ऑफ जीनस फंगी दैट फॉर्म माइक्रोराइजल एसोसिएशन विद द प्लांट्स, हाउ डज द प्लांट डिराइव बेनिफिट विद दिस एसोसिएशन। तो माइक्रोराइजा के अंदर, रूट्स के अंदर फंगस होती हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर ग्लोमस की फंगस रहती हैं, एंड अब्सॉर्ब करती हैं फॉस्फेट, सॉल्युबलाइजिंग उनका नेचर होता है, और वो बेनिफिट करती हैं प्लांट को न्यूट्रिशन देने में। नेम टू टेक्निक्स यूज्ड टू कैंसर द इंटरनल ऑर्गन, MRIs एंड बायोप्सी, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज। हम कोई भी एक उनका नाम बता सकते थे इसमें, तो मेथड बताने के बाद। द ग्राफ गिवन बिलो शो द नंबर ऑफ प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स पर द ओवरी वुमेन एट डिफरेंट एजेस। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग। प्री मोनोपॉजल वुमेन का डार्क में दिया हुआ है, पेरी
मेनोपॉजल वुमेन इरेगुलर मेंसेस फॉर एटलीस्ट 1 ईयर का लिए दिया हुआ, पोस्ट मेनोपॉजल के लिए नो मेंसेस एटलीस्ट 1 ईयर, ट्राइंगल से दिखा रखा है। द एवरेज एज क्या है वुमेन का एट द ऑनसेट ऑफ मेनोपॉज, तो एवरेज एज यहाँ से निकालनी है हमें, एज एट द ऑनसेट ऑफ मेनोपॉज। तो जो डार्क वाले स्क्वायर्स हैं उनके एज ग्रुप्स को प्लस करके और डिवाइड बाय 4 कर देंगे, क्योंकि 40 तक बिकॉज आ रहा है डार्क स्क्वायर्स। एंड what age maximum primary follicles are present, maximum कहाँ पर है, so you can see the maximum primary follicles are at the before we can say puberty, क्योंकि धीरे धीरे वो follicles क्या होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। Abingdon tortoise in the Galapagos Island become extinct with the decade, introduction of goats, explain the reason। तो ये क्या है, इंटरजेनरिक कंपटीशन है, बिकॉज टोटोइज और गोट अलग अलग जेनरा के हैं, बट गोट की ब्राउजिंग एफिशिएंसी ज्यादा है, तो वो ज्यादा जल्दी ग्रास को खत्म कर देती है, तो इस वजह से एबिगडन टोटोइज एक्सटिंक्ट हो गए थे। एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यहाँ पर फॉलो हो गया था बिकॉज इंटरजेनरिक कॉम्पिटिशन की वजह से। बाय यूजिंग पुनेट स्क्वायर डिपिक्ट करना है जीनोटाइप ऑफ फिनोटाइप टेक्स्ट क्रॉस वे ग्रीन पॉड कैपिटल जी इज डोमिनेंट ओवर द येलो पॉड स्मॉल जी इन द गार्डन। तो ये आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिखाना था पुनेट स्क्वायर की मदद से, बहुत इजीली आपने बना लिया होगा। और इसमें कैपिटल जी ग्रीन पॉड का क्रॉस करके दिखाना था स्मॉल जी वाले पॉड से, स्मॉल जी इंटू स्मॉल जी से। तो इसमें 3:1 में ही आएगा फिनोटाइपिक रेशियो जीनोटाइपिक रेशियो, F2 तक बना के दिखाना था 2 मार्क्स में। एक्सप्लेन हाउ डिड द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय एस एल मिलर सब्सटैंशिएट द लाइफ। इसमें मिलर एक्सपेरिमेंट करना था कि किस तरह से रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में जब गैसेस थी तो स्पार्क चेंबर में बिजली के स्पार्क से और हाई टेम्परेचर पे किस तरह से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने थे। तो लाइफ इवॉल्विंग टू एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से। 23 क्वेश्चन में प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ नीड टू बी both a mosquito and a human host for its continuity। प्रोटोजोआ को 2 होस्ट चाहिए, डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल है, तो उसे मॉस्किटो भी चाहिए, ह्यूमन भी चाहिए, तो आपको यहाँ पे इनडायरेक्टली प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल बतानी थी। डायग्राम से अगर आपने शुरू किया होगा तो जरूर आपको आ गया होगा। वी ऑलमोस्ट वर्क टूवर्ड मेंटेनिंग गुड हेल्थ बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। 6 वेज आपको बताने थे कि हाउ यू कैन मेंटेन द गुड हेल्थ बाय प्रॉपर हाइजीन, सराउंडिंग की हाइजीन से, एंड बाय good exercise, daily exercise, and by healthy nutritional diet. Name the explain the surgical contraceptive method that can be adopted by male partner। सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है आपकी वैसेक्टोमी। तो यहाँ पर वैसेक्टोमी की डिस्क्राइब करना कि वैस डिफरेंस को थोड़ा कट करके टाई कर देते हैं। एंड बायोडाइवर्सिटी प्ले मेजर रोल इन मेनी इकोसिस्टम सर्विसेज दैट, तो यहाँ इकोसिस्टम की सर्विस इन ब्रॉडली यूटिलिटेरियन वे का बताना था। और वन एथिकल रीजन बताना था कि हमारी कैसे मॉरल वैल्यू है कि हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें, बिकॉज बायोडाइवर्सिटी हमारी बैलेंस मेंटेन करती है लाइफ के। वन ऑफ द मेजर अप्रोचेस ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। Explain the steps involved in making sure that only the desired pollen grain pollinate। तो pollen crystal interaction के बारे में यहाँ पे बताना था। एली लीली कंट्रीब्यूशन RDNA टेक्नोलॉजी से कैसे हम इंसुलिन बनाएंगे, तो वो आर्टिफिशियल इंसुलिन, रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन बनाने का प्रोसेस यहाँ पूछा था 3 मार्क्स में। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर एनी 4 प्राइम गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, तो गोल्स लिख देने थे यहाँ पे आपको। एनसीईआरटी में बहुत सारे गोल्स दिए थे, उसमें से आप कोई भी पॉइंट्स गोल्स के लिख सकते थे। नेम एनी 1 कॉमन नॉन ह्यूमन एनिमल मॉडल। तो नॉन ह्यूमन एनिमल मॉडल जो सीक्वेंस किया गया है तो वो आप सी एलिगेंस दे सकते थे, ये राउंड वॉर्म है, और आप ड्रोसोफिला भी दे सकते थे, वो भी सीक्वेंस किया गया था। अब फिर आपकी केस स्टडीज थी, आप देख सकते हो क्वेश्चन पेपर में, चाहे तो आप इसका उसको आपने आराम से पढ़कर सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर ये है केस स्टडी, एंड उसके बाद आप क्वेश्चंस इवन सेक्स डिटर्मिनेशन सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के ऊपर ये केस स्टडी थी। फिर आपकी इकोसिस्टम के चैप्टर में से दिया है। उसके बाद बायोरिएक्टर्स, आप
दूसरी आपकी केस स्टडी आपकी एसटीडी के ऊपर थी, ये ग्राफ भी आपको दिया हुआ था। एंड देन स्टडी द ग्राफ एंड राइट द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस एंड ड्रॉ स्कीमेटिक लेवल डायग्राम ऑफ एनी एंटीबॉडी, या तो उसके ऑप्शन में क्वेश्चन भी था एंटीबॉडी हेल्थ चैप्टर से। एंड इन विच पीरियड द नंबर ऑफ इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज द हाईएस्ट, पर्सन सफरिंग फ्रॉम निमोनिया नेम द इम्यून सिस्टम सेल्स दैट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। फिर बायोरिएक्टर के ऊपर क्वेश्चन था, लिस्ट द ऑपरेशनल गाइडलाइंस दैट कैन बी अडहेयर टू सो as to achieve optimization in the bioreactor system, and list any four. Mention the phase of the growth we refer to in the statement optimization. तो आपको बायोरिएक्टर के ऑप्टिमाइजेशन मतलब ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम टेम्परेचर, फोम ब्रेकर्स, इन सब के बारे में बताना था। इस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द बायोरिएक्टर सुटेबल फॉर इंटेंडेड यूज और इमीडिएट, गिव रीजन सपोर्ट योर आंसर। प्योरिफिकेशन वगैरह करते हैं, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करते हैं, तो उसके बाद ही हम इमीडिएट यूज के लिए नहीं, इंटेंडेड यूज के लिए यूज होता है। इको R1 played very significant role, RDNA टेक्नोलॉजी, एक्सप्लेन द कन्वेंशन, नेमिंग नोमेनक्लेचर पूछा गया है यहाँ पर इको R1 का। तो E is coming from eco escherichia, CO coming from coli, R coming from the strain, and 1 coming from the order in which the enzyme was released. Write the recognition sites and the cleavage sites for restriction endonuclease, so G88 etc, इस तरह का रिकॉग्निशन साइट बताना था। एंड देन इट्स द समटाइम ऑब्जर्व दैट हैपन प्रोजेनी शो फिनोटाइप दैट रिसेंबल बोथ पेरेंट्स। एक्सप्लेन ABO ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप का आपको क्रॉस करके अगर आपने दिखाया तब भी आंसर सही है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एमिनो एसाइलेशन ऑफ द ट्रांसलेशन पे क्वेश्चन था यहाँ पर। प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन में एमिनो एसाइलेशन का क्या रोल है, हाउ डज इनिशिएशन ट्रांसलेशन प्रोसेस अकर इन द प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में ये कैसे होती है। एंड व्हाट आर अनट्रांसलेटेड रीजंस, तो प्रमोटर के जस्ट पहले, स्टार्ट साइड से जस्ट पहले और स्टॉप साइड से बाद में जो रीजन्स होते हैं उन्हें अनट्रांसलेटेड रीजन्स कहते हैं। ट्रांसलेशन के टॉपिक में ये दिया था। एक्सप्लेन द मोनोस्पर्मिक डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो सैक इन द ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म, तो ये आपको ओव्यूल का पूरा डायग्राम विद डायग्राम वेल लेबल्ड उसके सारे पार्ट्स एक्सप्लेन करने थे। ड्रॉ डायग्राम मैच्योर एम्ब्रियो सैक, मैच्योर एम्ब्रियो सैक 8 सेल्ड, 8 न्यूक्लियाई 7 सेल वाला एम्ब्रियो सैक आपको करके उसमें कोई भी 4 पार्ट्स लेबल करने थे। Explain the formation of placenta about after the implantation in the human female, and draw the diagram how human fetus within the uterus and the label any 4 parts. fetus किस तरह का होता है यूट्रस में, वो करके आप उसके डिजिट्स, उसके अम्बिलिकल कॉर्ड और उसके कोरियोनिक विलाइज ये सब मार्क कर सकते थे, कोई भी 4 पार्ट्स। तो आई होप ये आपको पेपर समझ में आ गया होगा। पेपर का लेवल हम कह सकते हैं कि अबव कह सकते हैं, एवरेज है, अबव एवरेज पेपर है। एंड ट्रिकी है थोड़ा सा, एंड बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा ग्राफिकल क्वेश्चंस भी थे और काफी घुमा के क्वेश्चन पूछे थे, ट्विस्टेड क्वेश्चन से, डायरेक्ट क्वेश्चन कोई भी नहीं थे। तो आई होप ये पेपर आपका सभी का अच्छा गया होगा। ऑल द बेस्ट for your next exams, and I hope you will be getting good marks in this paper. Thank you and good luck for your future prospects. Thank you. So I am Hemlata Yadav. I was Hemlata Yadav with your giving you a review of the class 12 biology, and I hope you have liked the video. So hit the like button and share and subscribe with your class 12 friends.